के बारे में बताऊं, कल के जूम सेशंस की देर आर फ्यू carry forward point. Few, a speaker of repute, very hardworking, very dedicated coach. I would say he's much better than coach. His name is Mr. Kishan Kumar. He's assistant fencing coach is in NIS Patiala. He is one of the 4 instructors we have in the faculty of this coaching online training program. He is himself a national fencing player, former national fencing player from Haryana. He did NIS. He has been qualified on Olympic solidarity courses in Hungary. He has been with many times with the Indian fencing team in junior and senior category as coach. His specialization varies in all 3 weapons. He has really groomed and gained a lot of respect in the eyes of fencers and coaches over last 2-3 years. Very dedicated member of the Fencing Association of India and Sports Authority of India, and a very good coach. I have personally interacted with him so many times. He has got a thorough knowledge of the subject, thorough professional, and I am fully confident that he will do complete justice to this online class. There will be no question answer session. In the last 5 minutes or so, I will open few points for the instructors and the guest speakers if they have to say anything. The presentation will be uploaded as soon as session finishes, at the earliest by afternoon, by Mr. Kishan Kumar. Now, it's my honor on the behalf of SAI, Fencing Association of India, as a program director, to invite Mr. Kishan Kumar to please carry on with the class. I welcome you, Krishanji. Thank you very much. Please, over to you. Thank you, Colonel Vikram sir. First of all, I would like to thank Sai for giving us opportunity to interact with the fencing coaches and now with the fencers also. It is a wonderful opportunity for all of us to share our knowledge and to gain new things what we are not knowing previously, or you can say to share what we have to the fencers, to the Indian fencing community. And the today's topic what I have got for today's talk is about the saber fencing. It is regarding the introduction of saber fencing and footwork and the hand position. I will directly start with the presentation without taking much time. And this presentation will be covering the footwork and hand positions and the different systems for the fencing footwork. And okay, now my topic is for the today's session is regarding the fencing footwork, hand position, and before I start the regarding the footwork and hand position, I would like to go through a little bit about the what is saber, what is the dimension, and what is the target area. This is just to give a glimpse about the saber fencing. So as we all know, saber is a cutting and thrusting weapon. It means that in saber we can cut and we can use thrust. And the dimensions of a saber is like the length of saber weapon is 105 centimeter, and the blade length actually is 88 centimeter. And this is the valid target area. The portion in orange is actually the valid target area. If some fencer hit on this target area, then only he will get a score or point. Now, I would like to start with my main topic, that is saber footwork. Before starting to saber footwork, I would like to share a few points regarding the why we should go for the footwork, or why we should go for the saber on guard or a different kind of foot movements. Because
we have to know the basic fundamentals or basic things for the training, as we should know the sports training, or you can say in general life, there is a two different kind of movements. One is called fundamental movements, other is called the learned movement. Fundamental movements means the movement which we learn, sorry, which we inherited from the parents, like crawling, walking, and you can say jump, hop. These are the fundamental movements, or you can say inherited movement, which comes through the parents to us. And the other is like a learned movement, which we have to learn. Like we have to learn how to write A, B, C, or we can say we have to learn many things. Like if you see the fencing, it's on guard, it's a different movement. We have to learn these things. So these all the sports movement is not natural. That these we have to learn. Like for example, in gymnastics, somersault, we have to learn these things. So there's a different kind of movements, and that's why to know the fencing stances, fencing movement, before that we should know why we should learn, because there's a different methods. Some movements are fundamental movement, these are like very easy to catch, very easy to learn, very easy to develop, but those are the learned movement, those are the skills movement with that has to be learned. उन सबको हमें सीखना पड़ता है, वो हमारे अंदर इनहेरिटेड नहीं है, that has to be developed. तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए फोकस करना पड़ता है. And for the saber, I'll say for the fencing, we have a special stance that is called on guard. Now, what is on guard? On guard basically most ready stance, or you can say most suitable stance for a fencer to execute any kind of fencing action, whether it is an attack, defense, or counter-offensive action. Any kind of action. If you want to initiate an attack, or you want to initiate a defense or a counter-offensive action, this is the best suitable position from where you can start. So this is the traditional on guard stance, which was used in early days, in which you can see the fencer, the non-weapon arm is on higher side and the weapon arm on down side. And now, what is the main characteristics of this on guard is the placement of your foot. So it should be on right angle. The distance between 2 feet is approximately 1.5 feet, and it should be in a leg should be in a flexed position. Why in a flexed position? Because when it is excuse me, को साहब, ये there is एक line आ रही है आपकी presentation पे. I think someone is writing it, sharing his screen. We have to disable it. Someone is doing it. Please disable. Don't share screen. Please don't share screen. Can we find out who is this, को साहब? For that, we have to go back and check everything. I think they must have heard it, so they should stop it now. I think they don't know how to mute. Please don't share the screen. Don't write anything on the screen. ठीक है, you go on. I'll check it, sir. Thank you. Okay. Okay, sir. Now, the main thing is what I told you, that is the placement of your foot, flexing of your legs, and this upper portion. It should be in a turn way. It should be slightly, leg should be slightly flexed, and the distance is 1.5 feet. And which we will be demonstrating you in a video is in next slide. This was the traditional on guard stance. Now the developed one. This because in this stance there's a problem which fencer faced, that is the raised arm. Sir. Because according to biomechanics, if you raise your arm, you cannot maintain it for the longer period. If you keep it down closer to your body, you are able to move it, or you can maintain the posture for the longer period, and you can execute movement in a more economical and faster way. Next is the developed on guard stance. This is the developed one, in which you can see the hand is lowered, or you can see in this slide also. This is the actual on guard stance which is used by the fencer nowadays. को साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक साई ऑब्जर्वर से फोन आई है. कंटेंट शुड बी 60% इन हिंदी एंड 40% इन इंग्लिश. प्लीज मिक्स करके बोलिए. ओके ओके सर. सो दिस इज दी, ये ऑन गार्ड स्टांस है. आप इस फेंसर को जानते ही हैं, आप एक बार देख लीजिए, फिर डिस्कस ऑन इट. 1.5 or 2 foot long. So this is the position, and from this position I'll repeat this. मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार दोबारा देख लीजिए इसको. Position is your front foot facing your opponent, the other one in back
90 degrees from that, and you just move your front foot 1.5 or 2 foot long. So this is the upper position, and from this position. So ये एरोन शिलाजी 2 टाइम्स ओलंपिक चैंपियन जो हंगरी से हैं, इन्होंने भी आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि ऑन गार्ड स्टांस कैसे परफॉर्म करना है। तो ये जो नया डेवलप्ड ऑन गार्ड स्टांस है, ये उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। जो फुट डिस्टेंस की बात इन्होंने बोली है 1.5 feet and 2 feet, it depend upon the fencer's height and their preference also, because now it is developed. Past में fixed चाहिए, but it has to be 1.5 feet, तो laid down rules थे, but nowadays it is developed in evolution. अब हर कोई अपने accordingly modify करता है what suits to them, जो उनको अच्छा लगता है, जो सूट करता है, जहां से उनको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो he has advised कि इसके बीच में कुछ भी हो तो वो सूटेबल होगा। तो ये एक ऑन गार्ड स्टांस है जहां से फेंसर किसी भी तरह का फेंसिंग एक्शन करना हो, फेंसिंग का कोई भी फुट मूवमेंट एग्जीक्यूट करना हो, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये स्टांस सबसे सूटेबल है। ये बायोमैकेनिकली डिजाइंड है ताकि आप अपनी मूवमेंट को इकोनॉमिकल बना सकें, अच्छे से परफॉर्म कर सकें और सारी फेंसिंग मूवमेंट को जो डिजायर्ड रिदम है, डिजायर्ड स्पीड है, उसमें आप परफॉर्म कर पाए। नाउ हम डिस्कस करेंगे फुटवर्क के ऊपर। फुटवर्क क्या होता है? अभी तक था ऑन गार्ड। ऑन गार्ड था एक बेसिक स्टांस, प्राइमरी स्टांस, जहां से हमने मूवमेंट को स्टार्ट करना था। अभी तक हमने मूवमेंट नहीं किया था, वी वर इन अ स्टेशनरी पोजीशन। वो एक स्टांस था जहां से कोई भी एक्शन को हम स्टार्ट कर सकते थे। अभी हम मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, वी हैव टू स्टार्ट मूवमेंट। नाउ व्हाट इज फुटवर्क? फुटवर्क बेसिकली इट इज foot movements used by a fencer during the course of fencing. Of course of fencing means it can be a bout, it can be a someone, it can be a bout, or it can be a someone did it. Wait a minute, sir. Someone. Never mind. Do it, sir. Because of that line, it was good for us. Please do that. But it stopped my screen also, sir. Please share it. Never mind. Share it again. Never mind. We'll wait. Okay, sir. Now it is. So, the foot movement used by fencers during the course of fencing is known as a fencing footwork. And normally in fencing, we attain the mobility. Mobility means when we move forward and backward, any kind of movement, or you can say different kind of variety of footwork. It is not only one we move forward or backward. So in fencing, there's a variety of movement. So, कोई भी foot action. Kosab, please share. Kosab, sorry, please share the screen. नहीं आया अभी. Okay. I think. Please do that. Okay, sir. I think from my end it is sharing. I need to check it again. Okay, I'm sharing again, sir. Is it? Sir, are you able to see it? No. Please Now? do that. Now? I think now. Yes. Okay. So we'll continue. So fencing में जो फुट मूवमेंट हैं, जो कोई भी आप फेंसिंग के दौरान, फेंसिंग मींस अबाउट भी हो सकता है, फुटवर्क ट्रेनिंग सेशन भी हो सकता है, इट कैन बी इंडिविजुअल लेसन, किसी भी काम को करते वक्त फेंसिंग के दौरान जो फुट से हम एक्शंस करते हैं उसको हम लोग फुटवर्क बोलते हैं। और फेंसिंग में दो तरह के फुटवर्क होते हैं कि सिंपल फुटवर्क और कंपाउंड फुटवर्क। अब सिंपल फुटवर्क को कह सकते हैं सिंपल फुट मूवमेंट। सिंपल फुट मूवमेंट का मतलब है जहां पर सिंगल एक्शन होता है, या आप कह सकते हैं बहुत छोटा कोर्स ऑफ एक्शन होता है जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट नहीं होती है। और जो कंपाउंड फुटवर्क है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फुटवर्क, लाइक 1 or 2 मूवमेंट्स ऑल टुगेदर, लाइक स्टेप लॉन्ज एंड अदर थिंग्स। तो सिंपल फुटवर्क है जहां सिंगल फुट एक्शन है या एक एम है जिसको फुलफिल करना है, एंड द कंपाउंड इज वेयर you have to add 2 or more foot movements altogether. Now, why we should go for footwork training, or you can say footwork training is a training where you develop your basic, or you can say your fundamentals, जहाँ आप basics और fundamentals को develop करते हैं। अब एम क्या है, या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस क्या है फुटवर्क ट्रेनिंग की? फर्स्ट, टू सिक्योर द करेक्ट ऑन गार्ड पोजीशन। जैसे मैंने पहले अपनी पहली स्लाइड में बोला था, ऑन गार्ड इज द फंडामेंटल पोजीशन और से बेसिक स्टांस जहां से आप कोई भी फेंसिंग एक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम फुटवर्क ट्रेनिंग करते हैं तो हम अपनी ऑन गार्ड स्टांस को भी इंप्रूव करते हैं, उसको
अच्छा बनाते हैं। जब हम उसको अच्छा बनाएंगे तो हमारी बाकी मूवमेंट्स भी उससे इफेक्टेड होगी। सेकंड इज, हम लोग अपनी मूवमेंट को लाइव मतलब एक्टिव कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन वी मूव हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है। अगर उसमें डिस्टर्बेंस है तो हमारी मूवमेंट की स्पीड में, उसकी फ्लो में डिफरेंस आता है। बट अगर हम फुटवर्क ट्रेनिंग करेंगे तो वी विल कोप अप इट, हमें आदत हो जाएगी उसको कैसे कोप अप करना है, मूवमेंट को कैसे फ्लो में परफॉर्म करना है। देन इट इज प्रूव दैट अगर आप जितना टाइम एयर में रहेंगे उतना आपका लॉस होता है। तो व्हेन जितना आप फ्लोर के ऊपर रहेंगे उतना आपकी ब्रेन की कैपेसिटी, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट रिएक्ट करते हैं इफ यू आर इन फ्लो। तो फुटवर्क ट्रेनिंग करने से हम उसमें ट्रेन करते हैं अपने आप को, हम कितना क्लोज टू फ्लोर रहें, कितना फ्लोर से दूर कम जाएं। जैसे नॉर्मल फॉर एग्जांपल लॉन्च या जंप कर रहे हैं तो हम जंप में ज्यादा एयर में ना रह के क्लोज टू फ्लोर रहें, ताकि हम वेरी फास्ट दोबारा फ्लोर के कांटेक्ट में आ जाए, ताकि हमारा ब्रेन का एक्टिविटी फास्ट हो सके या हम नेक्स्ट रिएक्टिव मूवमेंट फास्ट कर पाए। टू अचीव द इकोनॉमिकल मोशन, ऑब्वियसली हम बार बार किसी चीज की ट्रेनिंग करेंगे तो वी आर हैबिचुअल, और जब हम हैबिचुअल हो जाएंगे उसको करने लग जाएंगे तो हमारी मूवमेंट्स इकोनॉमिकल हो जाएंगी। इकोनॉमिकल से मींस हमें लेस एफर्ट लगाना पड़ेगा उसी किसी काम को करने के लिए, हम आसानी से उस काम को कर पाएंगे। एंड स्मूथ ट्रांजिशन ओवर दी मूवमेंट्स मींस कि हम मूवमेंट को ट्रांजिशन लाइक अभी हम फास्ट मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड, हमें फास्ट बैकवर्ड आना है। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड जा रहे हैं सडनली हमें लॉन्च एग्जीक्यूट करना है, तो हम मूवमेंट को कंबाइन कर सकते हैं एक जगह से दूसरी मूवमेंट के अंदर। हम स्पीड में चेंजेस ला सकते हैं, हम ट्रेनिंग करेंगे तो स्पीड मींस मूवमेंट, फुटवर्क स्पीड। आप आगे पीछे जब मूव कर रहे हैं या आप आगे जा रहे हैं तो स्लो टू फास्ट, फास्ट टू स्लो, ये हम कर सकते हैं। टू मेंटेन बैलेंस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन फेंसिंग फुटवर्क। Coordination, it can be hand-leg coordination, body and leg coordination, you can say eye-hand coordination, every kind of coordination. It's in the coupling of the motion. And last one, सबसे important है, it develop new muscle memory. Muscle memory को मैं थोड़ा सा elaborate करना चाहूंगा यहाँ पर। Muscle memory का मतलब है it develop a neuromuscular pattern. Neuromuscular pattern का एक example है, for example जब छोटा बच्चा अल्फाबेट लिखना स्टार्ट करता है ए, तो उसको कई बार ए डॉट डॉट करके सिखाया जाता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा रफ लिखता है, फिर उसको फाइन करता है। वंस ही लर्न इट तो उसको आंख बंद करके भी लिख पाता है, बिकॉज इट स्टेज इन देयर मसल मेमोरी। तो जो मसल मेमोरी डेवलप करना बहुत जरूरी है। जब हम फुटवर्क की ट्रेनिंग करते हैं, बार बार ट्रेनिंग करते हैं, तो हम एक मसल मेमोरी जनरेट करते हैं। जो मसल मेमोरी जनरेट होती है वो हमारे मोशन को करने में हेल्प करती है, बिकॉज there is two different memories. One is you can say brain, you can say central nervous system से जो brain में सिग्नल जाता है उसके बाद आप रिफ्लेक्ट करते हैं। एक होती है मसल मेमोरी जो मसल्स में स्टोर है, मसल नोज इट कि हाउ टू रिएक्ट इट। तो जैसे मसल मेमोरी डेवलप हो जाएगी तो आपको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत फास्ट आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे फुट एक्शंस को। Now next is fencing performance and footwork. Now first thing, in terms of physical factor means when you put physical effort, it is not about the mental effort, psychological or tactical things, it is about the physical effort. हम फेंसिंग में या तो हम लेग से मूव कर रहे हैं या अपनी हैंड से मूव कर रहे हैं। अगर हम दोनों को कंबाइन करें, ब्लेड वर्क और हैंड वर्क को, तो जो फुट वर्क है वो ज्यादा अप्लाई होता है, बिकॉज वी हैव टू ट्रेवल 14 मीटर्स, और वहीं पर फुट से ज्यादा मूव करते हैं, हैंड से तब मूव करते हैं जब ओपोनेंट हमारे क्लोज आ जाता है। तो इसीलिए परसेंटेज ऑफ हैंड मूवमेंट इज ऑलवेज लेस देन दी फुट मूवमेंट्स। तो इसीलिए जो परफॉर्मेंस है उसमें 60 to 70% जो एफर्ट लगता है वो आपके लेग्स का लगता है। आप कह सकते हैं लेग्स का लगने का मतलब है कि इट इज अवर फुटवर्क व्हिच हेल्प्स अस टू विन द बाउट। अगेन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इट इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल फैक्टर, टैक्टिकल थिंग्स, दैट आर डिफरेंट थिंग्स, ओनली फिजिकल पैरामीटर्स। आप जो लेग और हैंड से मूवमेंट कर रहे हैं, आपने अपनी बॉडी से जो मूव कर रहे हैं, उसके अंदर जो 60% और कहते हैं 70% जो एफर्ट लगता है या जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज फ्रॉम दी फुटवर्क। और इट क्लियरली इंडिकेट्स कि बाउट को जीतने के लिए फुटवर्क या फुट मूवमेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो फेंसर है उसको फुटवर्क को सीखना या उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज फुट मूवमेंट्स। अभी हमने पहले डिस्कस किया था सिंपल फुट मूवमेंट्स एंड कंपाउंड फुट मूवमेंट्स। तो सिंपल फुटवर्क मैंने जो बताया था कि जिसमें एक एक्शन परफॉर्म होता है या एक एक्शन ही एग्जीक्यूट होता है, only one aim, one action, one motion आप कह सकते हैं। These are called simple foot movement. तो जो सब फर्स्ट वन इज
half step forward or you can say half step backward. Forward भी और half step backward, ये दो different actions हैं. Half step forward and half step back. एक first simple foot movement है. Next one is step forward and step backward. 2 step forward and backwards. Double step forward and double step backwards. Slide forward and slide backwards. Cross leg backwards, because in Sabre it is not permitted to move cross leg forwards. Jump forward and jump backward. Appel and launch and plunge. So these are the simple foot movements which is existing in the fencing. These are the basic actions. In combination we can design so many actions like half step forward, double step forward. So this is a different thing, but these are the basic fundamental movements which is different movement. And compound foot movements, it's a step forward launch, jump forward launch, double step forward launch, slide step launch, and step forward plunge. Now we'll discuss a little bit about the basic foot movements. First one is advance, or you can say step forward. This is the step forward. You can clearly see this from the on guard position. First, your front foot has to leave the floor by lifting the toe of the foot. Then you move a desired step forward and you have to place अपने heel को नीचे लगाना है, उसके बाद ball of foot को नीचे रखना है और फिर आपका rear foot आगे आएगा. तो हम ओपोनेंट के नजदीक जाने के लिए, ओपोनेंट के पास जाने के लिए हम इस एक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, इसको स्टेप फॉरवर्ड बोलते हैं. सैबर के स्टेप फॉरवर्ड में एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो स्टेप मूवमेंट्स हैं वो इन कंपैरिजन टू यू कैन से एपे इट इज लिटिल शॉर्ट. एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ट्रेनिंग में, जब हम बाउट में एग्जीक्यूट करते हैं, भी इट इज सजेस्टेड कि आप छोटे मूवमेंट्स करेंगे तो आप फ्लोर पे जल्दी वापस आ जाएंगे. जितने जल्दी आप फ्लोर पे जल्दी वापस आएंगे उतनी जल्दी आप नेक्स्ट एक्शन को, रिएक्टिव मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो. कैसे तो आपकी रिएक्शन एबिलिटी फास्ट होगी, आप क्विक रिएक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिट्रीट और स्टेप बैक, सेम फ्रॉम ऑन गार्ड पोजीशन. अब यहाँ पर आपका रियर लेग पहले मूव करेगा. जितना आपने स्टेप फॉरवर्ड मूव किया था उतना ही आपका रियर लेग पहले पीछे जाएगा और फिर आपका फ्रंट फुट बैक आएगा. जो अब इस चीज में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेप बैक वाइल मूव करते हुए. अगर आपने स्टेप फॉरवर्ड का मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ. स्टेप फॉरवर्ड में जब आप आगे जा रहे थे तो देखिए यहाँ पर आपका हील फर्स्ट स्ट्राइक कर रहा था, फिर बॉल ऑफ फुट स्ट्राइक कर रहा है. सिमिलरली व्हेन यू गो बैक तो हमें पहले आपका रियर लेग पीछे जाएगा, रियर फुट पीछे जाएगा, उसके बाद आपका जो फ्रंट फुट पीछे आएगा तो पहले अभी भी उसका पहले हील स्ट्राइक करेगा, देन बॉल ऑफ फुट. दिस इज स्टेप बैकवर्ड्स. नेक्स्ट इज जंप फॉरवर्ड. नाउ फ्रॉम ऑन गार्ड पोजीशन अगेन आपका जो इनिशियल फुट है, या आप कह सकते हैं आपका लीडिंग फुट है, फ्रंट फुट है, वो स्टार्ट करेगा आगे की तरफ एंड वो किक करेगा फ्रंट फुट को फॉरवर्ड, फॉलोड बाय द रियर लेग. और जब हम फ्लोर पे लैंड करेंगे दैट शुड बी साइमल्टेनियस, वो साइमल्टेनियस लैंड होगा. तो दिस इज कॉल्ड जंप फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज जंप बैकवर्ड. तो सिमिलरली फ्रॉम जंप फॉरवर्ड पोजीशन या आपका फ्रॉम ऑन गार्ड पोजीशन आप रियर लेग को किक करेंगे बैक साइड में, फ्रंट फुट से आप अपने आप को पुश करके पीछे वापस आएंगे. बट अगेन लैंडिंग शुड बी साइमल्टेनियस ऑन द बोथ द फीट. Next is cross leg back. As we discussed before that cross leg forward is not permitted, तो only हम इसमें cross leg back move करते हैं, cross leg back movement होती है. Next is launch. This is the launch. अब बाकी foot movement में और launch में एक difference है due to the conventional advantage in fencing. Okay, it is we can cover the maximum distance from launch. It is okay, but we have a conventional advantage कि हम launch अगर execute करते तो it has a right of way. तो launch जो execute करते हैं that is again from the on guard position we have to extend your arm, kick your front foot forward, press your rear knee downwards and push your body forward for a launch. When you land it should be always on the heel first, then ball of foot to maintain the balance. You have to throw your rear arm backwards to maintain or to gain the centrifugal force. तो ये launch की execution है. ये launch right angle पे foot होना चाहिए, रेयर लेग स्ट्रेट होना चाहिए, बॉडी अपराइट होनी चाहिए. अगर बॉडी फॉरवर्ड लीन होगी तो आपकी रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी. तो दिस इज लॉन्च. नेक्स्ट इज प्लंज.
Flunge is a kind of flunge in fencing, saber fencing. Difference flunge में और flunge में सिर्फ यही है कि आप flunge में rear leg को cross करके आगे जाते हैं. Flunge में you are not allowed to cross your rear leg forward. तो आपको front foot पे ही एक लंबा jump करके hook करके आगे land करना होता है. Depend upon the how explosive you are, उसके ऊपर आप flunge execute कर सकते हैं. Now similar foot movements with a different intention. Now, two step forward and double step forward. I have mentioned in my simple foot actions, two steps forward and double step forward. So these are two different actions. Two steps forward means two normal steps forward. When you move, जब आप दो normal step forward move करते हैं from on guard position, आप एक step forward move किए, फिर आपने दूसरा step forward किया, तो आपने दो normal step forward आपने move किया. But double step forward का मतलब है it is a you can say acceleration when you push it with the tapping of the foot forcefully on the floor and then move forward. So two steps forward, two normal steps forward हैं. Double step forward में acceleration involved है, जहां पर आप accelerate करते हैं अपनी body को forward push करते हैं. Next is jump forward by landing on the ball of front foot and jump forward by landing on the heel of the front foot. दोनों बिल्कुल same है, दोनों की intention भी same है. यहाँ पर फर्क है landing का, आप कह सकते हैं finish का. Starting initial action दोनों का बिल्कुल same है, but difference है landing पे. एक होता है बॉल ऑफ फ्रंट फुट पे, एक होता है हील ऑफ फ्रंट फुट पे. दोनों के इंटेंशन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं. ओनली डिफरेंस है एग्जीक्यूशन का. कुछ कोचेस मीन डिफरेंट स्कूलिंग है यहाँ पर. स्कूलिंग मींस इटालियन स्कूल, हंगेरियन स्कूल, फ्रेंच स्कूल, उसमें भी डिफरेंट कोचेस की डिफरेंट मेथोडोलॉजी है ट्रेनिंग की. तो सम पीपल प्रेफर वो बॉल ऑफ फुट पे लैंड करे ताकि उनकी इलास्टिसिटी बनी रहे, और सब लोग हील पे प्रेफर करते ताकि कन्वेंशनल एडवांटेज रेफरी को दिखे कि उसका फुट नेक्स्ट जाने वाला है आगे, तो क्लियरली विजिबल हो. तो ये डिफरेंट फुट मूवमेंट्स हैं जो डिफरेंट इंटेंशन रखते हैं. नेक्स्ट इज जंप फॉरवर्ड फॉर प्रिपरेशन एंड जंप फॉरवर्ड फॉर अटैक. देयर इज अ डिफरेंस. व्हेन यू make a jump forward preparation, that is always slower and shorter. When we go for the jump forward for attack or aggressive lunge, it should be always strong, and the tapping on the floor, it should be very intensive. तो जब हम प्रिपरेशन के लिए जंप फॉरवर्ड करते हैं वो स्लो होता है, काम होता है. और फॉर एग्जांपल व्हेन यू वांट टू फेंट समवन और यू वांट टू आप किसी का अटैक पास करवाना चाहते हैं, तो आप एक सॉफ्ट एंड स्लो जंप फॉरवर्ड करते हैं, देन यू मूव जंप बैकवर्ड. तो जंप फॉरवर्ड जो स्लो वाला है, दैट इज फॉर द प्रिपरेशन. आप प्रिपेयर कर रहे हैं, हाँ मैं आगे जाके क्या देखूं. पर जब जंप फॉरवर्ड आप अटैक के लिए करना चाहते हैं, तो इट शुड बी फास्ट. तो ये डिफरेंस है. सिमिलर फुट मूवमेंट्स है, बट उनके अंदर उनकी इंटेंशन में डिफरेंस है. नाउ आई हैव सम लिटिल बिट ऑफ वीडियोस जो डिस्क्राइब करेंगी हाफ स्टेप. तो व्हाट इज हाफ स्टेप? दिस इज बेसिकली एग्जीक्यूशन के लिए है. ये हाफ स्टेप आप फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, हाफ स्टेप बैकवर्ड भी हो सकता है, बट हाफ स्टेप नॉर्मली इन आज के डेज में इट इज यूज टैक्टिकली. समवन इज राइटिंग ऑन स्क्रीन, प्लीज डोंट डू इट. So this is the half step forward. So this is half step forward. Now double step forward and slide step. Please don't disturb the screen. Please don't write anything on the screen. You will be removed. Please don't do that. So this is double step backwards they are performing. Now next is double step forward. You can see acceleration in this.
2 स्टेप्स में लोग नॉर्मल स्टेप मूव करते हैं, इसमें वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, दे पुश देमसेल्फ टू मूव फॉरवर्ड. This is program coordinator Vikram Singh. Somebody is writing on the screen. Please don't do that. Now next is balance. Balance in terms of how you can develop your balance or why balance is important in fencing. क्यों जरूरी है balance fencing के अंदर? देखिए, किसी भी एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बैलेंस स्टांस से हम उसको ज्यादा अच्छा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जब हम उसको फिनिश करते हैं, बिकॉज व्हेन वी इनिशिएट द अटैक और व्हेन वी फिनिश इट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. मेन कोर्स इज इंपॉर्टेंट, बट जब इनिशिएट करते हैं तब भी बैलेंस आपके पास होना. जब आप लैंडिंग करते हैं, जब फिनिश करते हैं, कंक्लूड करते हैं एक्शन को, तब भी बैलेंस रिक्वायर्ड है. तो बैलेंस जहां पर रिक्वायर्ड होता है वहां वी नीड स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एंड मोर ओवर यू नीड अ कोर स्ट्रेंथ. जब तक आपके पास कोर पावर या कोर स्ट्रेंथ नहीं होगी, यू कैन नॉट एग्जीक्यूट मूवमेंट इन द एक्सप्लोसिव वे विद अ बैलेंस कंडीशन. तो बैलेंस को इंप्रूव करना, बैलेंस एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है. दिस इज वन ऑफ द एक्सरसाइज. बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, उसमें एक मैंने चूज किए, बैलेंस भी है साथ में स्ट्रेंथ भी है, बट इट इज right now in this exercise we are focusing on the balance. So in this exercise, कोच का इंटेंशन जो था वो था उसके बैलेंस को इम्प्रूव करना. जब हम बैलेंस को इम्प्रूव कर रहे थे, इसके अंदर आप देखेंगे इनडायरेक्टली वो इंक्लाइंड बेंच था, तो वहां पर हम लोग स्ट्रेंथ को भी इन्वॉल्व कर रहे थे. जब कोर स्ट्रेंथ के अगेंस्ट या आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे, यू नीड टू अप्लाई एफर्ट, और एफर्ट दैट इज कोर एफर्ट. जब कोर की एफर्ट लगाएंगे तो आपका कोर पावर डेवलप होगा. जब कोर पावर डेवलप होगा, ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली आपका बैलेंस को डेवलप करेगा. दिस इज वन वे ऑफ डेवलपिंग बैलेंस. उसमें और बहुत सारी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं. ये मुझे अच्छी लगी, ऐसा लगा कि थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ और कह सकते हैं कोर पावर और बैलेंस दोनों एक साथ डेवलप हो रही हैं. तो दैट्स व्हाई आई शोड इट. Coach साहब एक मिनट if you can hold, if you can stop. Yes sir. Okay, now we have reached around 1/3 of the session. हम लगभग 1/3 सेशन खत्म कर चुके हैं इसमें टाइम के हिसाब से. अगेन मैं कुछ चीजें आपको रिपीट करना चाहता हूं. नंबर 1, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. सेकंड, आप अपना नाम, अपनी स्टेट प्लीज चैट बॉक्स में उसको लिखिए, ताकि बाद में जब आपको सर्टिफिकेशन देनी है तो हमें पता लगे कि किस किस ने अटेंड किया है. 200-250 बंदों का एकदम हमारी तरफ से नॉमिनल रोल बनाना बहुत मुश्किल है. तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं उनको नोट कर रहा हूं. जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज एप्पल, we will apple kind of attack, we will clearly clarify in the later stages. What's up, please carry on. Thank you very much. Okay sir.
This is one of the coordination exercises. There are so many, but it is not possible to show everything. Coordination means now you can see the foot coordination, आपस में coordination, different movement को कैसे synchronize करना है. Step forward. And skipping. Now. Sorry. Lunge. Because not moving. So this was the coordination exercises, and there are so many, but I have chosen this one because it is more simple and easy to understand. और इसमें आप अपनी legs की आपस में coordination बना रहे थे, दोनों legs का आपस में coordination with the different signals. Next is tactical footwork. Tactical footwork means choice of action. When you have to decide कि मुझे कब अटैक करना है, कब काउंटर अटैक करना है, कब अपने आप को पीछे लेके जाना है, कब अपने आप कब मुझे अटैक करना है. in previous video वहां पर मैंने tactical term use किया था. Now what is tactical? Tactical means when you have to perform action according to given situation. For example, अगर आपके सामने opponent आके खड़ा हो जाता तो आपको क्या करना है. अगर opponent आपके सामने खड़ा और सडनली पीछे चला जाता तो क्या करना है. आपके प्रिपरेशन से पहले ही अगर आपके ऊपर अटैक करता तो आपको क्या करना है. तो डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चॉइस ऑफ एक्शन को फाइंड आउट करना है. दैट्स व्हाई इट इज टैक्टिकल फुटवर्क, जहां पर आपको डिफरेंट स्टिमुलेंस के अगेंस्ट, डिफरेंट वेरिएशंस के अगेंस्ट आपको डिफरेंट रिप्लाईज देने हैं. दैट्स व्हाई वो जो था वो टैक्टिकल फुटवर्क था. ये एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी. इट इज वाशास ट्रेनिंग सेंटर इन हंगरी, जिसमें 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन हैं एरोन शिलाजी, और उनके साथ में यूरोपियन चैंपियन है अंडर 17 की एक लड़की, आई फॉरगॉट हर नेम, एंड देयर इज अ रॉब क्रिस्टियन जो यूथ ओलंपिक गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं. ये सब इसी फुटवर्क सेशन में ट्रेनिंग कर रहे हैं. आई वांट टू शो यू the rhythm they are following, the balance they are maintaining, and the you can see the coordination of the movement.
नाउ जो नेक्स्ट अब हम जो डिस्कस करेंगे इट इज डिफरेंट इन द प्रीवियस वन। हमने जो अब तक डिस्कस किया, हमने फुट मूवमेंट के बारे में जाना जो सबको ऑलमोस्ट सबको ही पता था। अभी जो मैं बात करूंगा वो कोचिंग मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करूंगा, एक कोच के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। अब तक जो हमने देखा वो बेसिक फुट मूवमेंट्स थे, फिर बेसिक एक्शंस थे, कौन कौन से पैरामीटर्स सॉरी कौन कौन से फुट एक्शंस हम फेंसिंग में यूज करते हैं, हमने वो डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे फुटवर्क ट्रेनिंग की। अब हमने कहा कि फुटवर्क बहुत जरूरी है परफॉर्मेंस के लिए। हमने ये भी बात किया कि फुटवर्क जो है वो क्रिएट करता है सिचुएशन ताकि आप बाउट को जीत पाए। अब फुटवर्क ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, बट फुटवर्क ट्रेनिंग किन बातों के ऊपर डिपेंडेंट है जिससे फुटवर्क ट्रेनिंग इफेक्टेड होती है या जिस पर फुटवर्क ट्रेनिंग अच्छी हो सकती है। फर्स्ट, फुटवर्क ट्रेनिंग डिपेंड करती है एक फेंसर के लेवल के ऊपर, किस लेवल का फेंसर है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोच हूं, अगर फुटवर्क ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करूंगा तो मैं देखूंगा किस लेवल का प्लेयर है। वेदर इज एलीट, एलीट मींस ही कैन बी लाइक इंटरनेशनल मेडलिस्ट, नेशनल चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन, जो उस लेवल पे हैं, जो ऑलरेडी एक पोडियम फिनिश कर रहे हैं, दीज आर टर्म्ड एज एलीट फेंसर्स। एडवांस जो अभी ग्रोइंग स्टेज पे हैं, जिन्होंने एक लेवल अचीव कर लिया है, एक अटेन कर लिया, लाइक दे आर स्टेट चैंपियंस और दे आर लाइक रीच्ड अप टू सम लेवल इंटरनेशनल। तो वो जो लेवल है बिगिनिंग और बीच का, जो एलीट के बीच में जो लेवल रहता है दैट इज एडवांस लेवल, उस लेवल के हैं या बिल्कुल बिगिनर है, तो उनके लेवल के अकॉर्डिंगली आपका फुटवर्क ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन होगा। एक कोच के पर्सपेक्टिव से जब मैं प्रोग्राम डिजाइन करूंगा तो आई हैव टू लुक ऑन दीज फैक्टर्स कि मैं फुटवर्क किनको करवा रहा हूँ, वेदर दे आर एलीट, क्या वो बिगिनर हैं, कि वो एडवांस फेंसर्स हैं। नेक्स्ट, फेज ऑफ ट्रेनिंग। अब ये तीनों है सेक्शंस, वो एलीट भी हो सकता है, एडवांस भी हो सकता है, बिगिनर भी हो सकता है, बट वो कौन से फेज में है। हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में फेज होता है, प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज एंड ट्रांजिशन फेज। अब प्रिपरेटरी फेज का फुटवर्क ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग होगा, कंपटीशन फेज का अलग होगा एंड ट्रांजिशन फेज का अलग होगा। वो क्या होगा, हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो उसको और एलोबरेट करता है। एम ऑफ ट्रेनिंग, एम ऑफ ट्रेनिंग का मतलब है डेवलपमेंटल ट्रेनिंग या मेंटेनेंस फुटवर्क। अब डेवलपमेंटल का मतलब है जो प्रिपरेटरी फेज है, दैट इज फॉर द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का मतलब है यहाँ पर हम we can develop their technique, we can develop their specific motor qualities, we can develop their feeling of distance, sense of distance, we can develop their tactical एबिलिटीज। तो ये सब चीजें डेवलपमेंटल है, जहां पर आपको उनको नई चीज सिखानी है, उनके अंदर कोई नई चीज डेवलप करनी है। यहाँ पर अगेन क्या बात हो रही है, नया मोटर मेमोरी को डेवलप करना, नया मसल मेमोरी को डेवलप करना। जो प्रिपरेटरी फेज है या कैसे डेवलपमेंट फुटवर्क है, दैट इज टू डेवलप देयर मोटर मेमोरी और यू कैन से मसल मेमोरी। तो मसल मेमोरी जब डेवलप करते हैं तो वो आपके प्रोप्रियोसेप्टर्स को डेवलप करता है। प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या होते हैं, मसल्स के अंदर जो मसल्स की अपनी जो मेमोरी होती है, यू कैन से दैट इज दीस आर प्रोप्रियोसेप्टर्स, जो मसल अपने आप रिएक्ट करते हैं एक्शंस के लिए। तो जो डेवलपमेंटल फेज है, प्रिपरेटरी फेज है या डेवलपमेंट फुटवर्क है, वो प्रिपरेटरी फेज में ज्यादा अच्छा रहता है। जो मेंटेनेंस फुटवर्क है, मेंटेनेंस फुटवर्क है या मेंटेनिंग फुटवर्क है, वो कॉम्पिटिटिव फेज में, तो वहां पर आप बहुत कुछ डेवलप नहीं करते हैं, बट आप जो पहले से डेवलप किया हुआ उनको मेंटेन करते हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट एक स्टार डालूंगा मैं कि बट अगर इफ यू रिक्वायर कि समथिंग नीड टू बी ऐड, लाइक फॉर एग्जांपल कोई टेक्निकल सेंस आपको ऐड करना है, कोई छोटा सा पैरामीटर ऐड करना है, तो आप मेंटेनेंस फेज में भी ऐड कर सकते हैं, बट वो बहुत बड़ा चेंज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ स्मॉल चेंज। तो प्रिपरेटरी फेज का जो फुटवर्क है वो डेवलपमेंटल होता है, कॉम्पिटिटिव फेज का जो होता है वो मेंटेनेंस फुटवर्क होता है। जो ट्रांजिशन फेज होता है, इसमें जो फुटवर्क होता है अगेन इट इज मोर और लेस मेंटेनेंस फेज होता है, इसमें कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, बिकॉज इट्स अ रिकवरी फेज। तो इसमें आप समटाइम्स आप फुटवर्क करते हैं वो अपनी बॉडी, अपने एबिलिटीज को मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट इज मेथोडोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तक के जो थे वो सिर्फ ब्रेन वर्क था कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, किस फेज में हैं, क्या एम है, डेवलपमेंट करना है कि मेंटेन करना है। पर जो मेथोडोलॉजी की बात आती है तो मेथोडोलॉजी इट इज समथिंग जो एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन करवाते हैं आपके एक्शंस का। फॉर एग्जांपल आप किस मेथड से ट्रेनिंग करवाएंगे, फॉर एग्जांपल आपका एम है कंडीशनिंग, आपका एम है कि स्पेसिफिक एबिलिटीज को डेवलप करना है, मे बी एंड्योरेंस, मे बी स्पीड, मे बी आप एजिलिटी को डेवलप करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो आप किस मेथड को यूज करेंगे, वेदर यू गो फॉर द कंटिन्यूअस मेथड, यू गो फॉर द इंटरवल मेथड, आप सर्किट ट्रेनिंग करवाएंगे या कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स करवाएंगे, तो आप किस तरह के मेथड को यूज करेंगे, जो आपकी मेथोडोलॉजी है। फिर उसके अंदर आपका आता है आप किस तरह के ट्रेनिंग डिवाइसेस को यूज करेंगे, लाइक
आप थेराबैंड यूज करना चाहते हैं, आप कोन्स यूज करना चाहते हैं, स्कीपिंग रोप यूज करना चाहते हैं, दीज आर द मेथोडोलॉजीज। तो एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन है वो मेथोडोलॉजी में है, बट जो स्टार्ट फेज है दैट इज लेवल। तो ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। अगर एक पॉइंट को भी हम टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उसके टॉप को भी टच करेंगे, हम बॉटम को टच करेंगे तो हम टॉप को भी टच कर रहे हैं, अगर हम टॉप को टच कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें मेथोडोलॉजी को भी देखना पड़ेगा। एलीट प्लेयर के लिए, जो एलीट फेंसर है उसके लिए मेथोडोलॉजी सेम नहीं हो सकती जो बिगिनर के लिए। इट मींस अगर मैं बिगिनर के लिए कोई प्लान कर रहा हूं तो मेथोडोलॉजी मुझे पहले ही सोचनी पड़ेगी मुझे क्या करना है, फिर उसका फेज। तो सब कुछ इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक्ड है, तो इसी के ऊपर आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन होता है। नेक्स्ट इज कोच मस्ट ऑब्जर्व फॉलोइंग थिंग्स इन फुटवर्क। जब हम फुटवर्क ट्रेनिंग करवाते हैं तो कोच का काम क्या होता है? ही हैज टू ऑब्जर्व, बिकॉज इट्स अ कोच एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसको एक कोच के प्रोस्पेक्टिव से कोच को क्या चीजों को देखना चाहिए जब वो फुटवर्क करवा रहा है बच्चों के अंदर? फर्स्ट, करेक्ट पोस्चर, इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका स्टांस ठीक नहीं है, पोस्चर ठीक नहीं है तो आपकी मूवमेंट की एग्जीक्यूशन सही नहीं हो सकती। पोस्चर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। आपका स्टांस को इंप्रूव कराना, जो स्टांस फॉर एग्जांपल ऑन गार्ड इट इज फ्लेक्स पोजीशन, तो आपको फ्लेक्स में रहना है, आपका हैंड वन फोर आर्म फिंगर डिस्टेंस अवे होना चाहिए, तो फोर फिंगर अवे ही रहना चाहिए। तो करेक्ट पोजीशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज रिदम। फेंसिंग में रिदम प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रिदम इसलिए नहीं कि रिदम करने से आप अच्छे दिखेंगे, कैलिस्थेनिक एस्थेटिक मूवमेंट होगी, नहीं। रिदम आपकी मूवमेंट की एग्जीक्यूशन को अच्छा करती है। फॉर एग्जांपल ए फेंट, एक एग्जांपल के लिए, या फेंट, अगर फेंट रफ होगा तो हो सकता है उससे ओपोनेंट बहुत पहले डर जाए या उससे डरे ही मत। तो इट शुड बी इन अ करेक्ट रिदम। तो फुटवर्क में भी एक राइट रिदम, फॉर एग्जांपल स्टेप लॉन्च, स्लो टू फास्ट। अगर आप फास्ट स्टार्ट करेंगे तो ओपोनेंट पहले पीछे भाग जाएगा, तो आपको क्लू नहीं देना। तो यू नीड टू फॉलो द राइट रिदम। तो जब आप फुटवर्क ट्रेनिंग कराएंगे तो यू हैव टू फॉलो द राइट रिदम। तो आपको ऑब्जर्व करना है क्या वो राइट रिदम को फॉलो कर रहा है, जो राइट रिदम है उस फुट एक्शन का। स्पीड, स्पीड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि फेंसिंग का जो ड्यूरेशन है एक्चुअल बाउट का, दैट इज वेरी शॉर्ट। फॉर एग्जांपल साइबर फेंसिंग में भी मैक्सिमम इज 30 सेकंड मैक्सिमम। तो 30 सेकंड के अंदर ही आपको एक हॉल्ट मिलता है, यू गेट ए ब्रेक, और दोबारा से आप रिप्लेनिश कर लेते हैं अपनी सारी कंज्यूम्ड एनर्जी को। तो इट मींस यू हैव ऑल बायोकेमिकल रिजर्व्स विद यू, बड़ी जल्दी आ जाते हैं आपके पास। तो स्पीड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके ओपोनेंट में आपसे ज्यादा स्पीड हुई तो वो आपको कॉप अप कर जाएगा या आपके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। तो इसीलिए जब ट्रेनिंग में इटसेल्फ वी हैव टू थिंक ऑन स्पीड। अगेन हमें बात की थी कि वी हैव टू डेवलप मसल मेमोरी। तो स्पीड इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन योर मसल मेमोरी। आपके मसल को याद करा के रखना कि ये मूवमेंट स्पीड में होती है, ये लॉन्च स्पीड में करना है, फिनिशिंग स्पीड में होनी चाहिए। अगर आपने वो नहीं फॉलो किया तो आप हो सकता है राइट ऑफ वे ना मिले, हो सकता है आपका अटैक काउंटर अटैक में कन्वर्ट हो जाए। तो राइट स्पीड को देखना बहुत जरूरी है एज ए कोच। एंड द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मींस फॉर एग्जांपल व्हेन यू स्टार्ट एन अटैक, हाथ का निकलना, पांव का निकलना, हैंड एंड लेग का कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ये सब कोऑर्डिनेशन आपके कोच को ध्यान रखना है जब फुटवर्क ट्रेनिंग करवा रहा होता है। एंड द बायोमेकेनिक्स ऑफ द मूवमेंट, बिकॉज आपको posture, it also more or less connects with the biomechanics, but biomechanics little more than the postures. Biomechanics, for example, in launch, use of rear arm. जब आप rear arm को throw करते हैं पीछे, it gives you centrifugal force. When you flex your knees, it biomechanically you get advantage. आपके muscle reflexes fast हो जाते हैं। आपके जो बायोमेकेनिक्स और करेक्ट बायोमेकेनिक्स, फॉर एग्जांपल अगर जितना लीवरेज को छोटा करेंगे उतना आप कम थकेंगे, उतना फोर्स ज्यादा एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना कि अगर आपका बच्चा करेक्ट बायोमेकेनिक्स के हिसाब से मूवमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फुटवर्क ट्रेनिंग करके हम डेवलप करते हैं? हमने जो मेथोडोलॉजी की बात की थी, हम मेथड्स को फॉलो करके फुटवर्क ट्रेनिंग को करके किन किन चीजों को हम डेवलप कर सकते हैं? हम उनकी स्पेसिफिक मोटर क्वालिटीज या मोटर एबिलिटीज, स्पेसिफिक का मतलब है उनकी स्पेसिफिक इंड्योरेंस, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक एजिलिटी, स्पेसिफिक आप कह सकते हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उन सबको हम डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबिलिटी का आप कहेंगे फुटवर्क में कैसे? फॉर एग्जांपल लॉन्च को करने के लिए यू नीड ए स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपकी लेग्स ही प्रॉपर नहीं खुलेंगी, यू आर नॉट एबल टू एक्सटेंड योर लेग। तो स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करने से डेवलप होती है। तो स्पेसिफिक मोटर एबिलिटीज डेवलप होंगी फुटवर्क ट्रेनिंग करने से। अब उनको डेवलप करने के लिए किस मेथड को हम यूज करेंगे, दैट इज ए वास्ट
टॉपिक जिसके लिए आप बहुत कुछ उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है उसके लिए। नेक्स्ट है सेंस ऑफ डिस्टेंस। अब फेंसिंग जो है इट इज टोटली बेस्ड ऑन डिस्टेंस। इट इज फेंसिंग में अच्छा कौन खेलता है, जिसके पास ज्यादा बेटर सेंस ऑफ डिस्टेंस हो या ज्यादा बढ़िया डिस्टेंस को चीट कर लेता हो। फेंसिंग में एम क्या होता है कि मैं दूसरे के डिस्टेंस को चीट कर लूं और मैं उसको हिट कर दूं। किसी को हिट करने के लिए यू नीड टू चीट द डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस को चीट मींस यू हैव टू गेन द डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस गेन करने के लिए यू शुड हैव द सेंस ऑफ डिस्टेंस कि मैं अभी किस डिस्टेंस पे हूं। तो हम फुटवर्क ट्रेनिंग करते हैं तो हम अपनी सेंस ऑफ डिस्टेंस को, फीलिंग को जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं। Sense of tempo, it is one of the most important factor in fencing. Tempo means it is most suitable time to execute any kind of fencing action. Most suitable time means you have to find out the right time to execute attack, defense or counter offensive action. Tempo basically, theoretically it is to psychological and physical, and in fencing we require both psychological and physical. Psychological we cannot see, it is someone's inborn quality जिसके पास ये होती है उसके पास होती है। बट फिजिकल टेम्पो को हम ट्रेनिंग करके डेवलप कर सकते हैं। अगर फिजिकल टेम्पो को हम जनरल एक्सरसाइज से भी डेवलप कर सकते हैं, स्पेसिफिक से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल एक्सरसाइज एक मैं बताता हूँ, स्कीपिंग रोप। व्हेन यू स्किप तो आपको अपने रोप को आपके लेग के नीचे से क्रॉस करवाना होता है। बहुत सारे लोग क्रॉस नहीं करवा पाते बिकॉज दे डोंट हैव फीलिंग ऑफ टेम्पो। उनको राइट टाइमिंग नहीं पता चलती कि कब वो रोप नीचे आएगी और मुझे निकालना है। तो ये सेंस ऑफ टेम्पो इंपॉर्टेंट है। दिस इज ओनली वन जनरल एक्सरसाइज। देयर आर सो मेनी एक्सरसाइज जो फेंसिंग के अंदर हम टेम्पो को डेवलप करने के लिए करते हैं। तो फेंसिंग में एक फैक्टर है टेम्पो, जिसको हम डेवलप कर सकते हैं फुटवर्क ट्रेनिंग करके, जो परफॉर्मेंस में रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल इफ इट इज 5 टच बाउट मींस यू कैन से पूल बाउट, तो पूल में टेम्पो हमेशा डोमिनेट कर रहा होता है। तो पूल में बिगिनर्स भी जीत जाते हैं बाउट। उसका रीजन यही है कि दे हैव फ्रेश फीलिंग। जो जितना आप फ्रेश होंगे उतना आपका टेम्पो ज्यादा अच्छा काम करेगा। टैक्टिस, नाउ फैक्टर्स जो हम डेवलप करेंगे फेंसिंग फुटवर्क के दौरान या फुटवर्क ट्रेनिंग से, दैट इज टैक्टिस। अब टैक्टिस का मतलब है चॉइस ऑफ एक्शन। चॉइस ऑफ एक्शन इस टर्म में आप इसको अदर वे में, अदर एंड से देखें तो जब मैं किसी के ऊपर अटैक करता हूँ या कोई मेरे ऊपर अटैक कर रहा है तो मेरे पास चॉइस ऑफ एक्शन क्या है, मैं कैसे उससे अपने आप को सेव कर सकता हूँ। फर्स्ट, अगर कोई मेरे ऊपर अटैक करता है तो आई हैव फर्स्ट ऑप्शन कि मैं स्टेप बैक चला जाऊं। तो चॉइस ऑफ एक्शन आई एम हैविंग विद मी टू मूव स्टेप बैक बट टू डिफेंड माई सेल्फ। दूसरा, अगर कोई मेरे ऊपर अटैक करता है तो उसके अटैक से पहले मैं उसको अटैक कर दूं। अटैक के ऊपर आई कैन एग्जीक्यूट अ काउंटर अटैक। प्रिपरेशन पे काउंटर अटैक यू कैन से इन अदर वे। फिर दूसरा हम कर सकते हैं उसके अटैक को मैं डिफेंड कर सकता हूं अपने वेपन से। सो देयर आर सो मेनी वेरिएशन। तो चॉइस ऑफ एक्शन आप फुटवर्क ट्रेनिंग में ही डिफरेंट वेरिएशंस को आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जो फुटवर्क ट्रेनिंग करके हम डेवलप कर सकते हैं। नाउ ये है ट्रेनिंग एड्स। अब हमने मेथोडोलॉजी की बात की थी। ये ट्रेनिंग एड्स बहुत, जितने भी आपके ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज हैं या मॉड्यूल्स हैं, मोडेलिटीज है, नॉट मॉड्यूल्स, मोडेलिटीज हैं, लाइक आप कंटिन्यूअस मेथड, सर्किट ट्रेनिंग, इंटरवल मेथड, सो मेनी मेथड्स आर देयर। आप किसी भी मेथड को यूज करते हैं और उन मेथड को यूज करने के लिए किसी न किसी डिवाइस को, किसी न किसी असिस्टेंस को यूज करेंगे। जो असिस्टेंस हैं वो ट्रेनिंग एड्स हैं, वो आपके फुटवर्क सेशंस को अच्छा बनाती हैं, तो इफेक्टिव बनाती हैं। और उससे क्या होता है, रिस्पांस भी ज्यादा अच्छा मिलता है। रिस्पांस नॉट ओनली रिस्पांस की उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द फेंसर्स, नो, रिस्पांस मींस द गेनिंग, डेवलपमेंट जो वो है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो दीज आर द ट्रेनिंग एड्स जो फेंसिंग फुटवर्क के दौरान यूज हो सकते हैं। कोन्स, स्पीड लैडर, मिरर, स्कीपिंग रोप, रबर एक्सपेंडर्स, थेराबैंड, थेराट्यूब्स, बॉसू बॉल्स, बेंच, वुडन बॉक्सेस, वेट जैकेट्स, बैंड, कफ्स, टेनिस बॉल, जिम्नास्टिक बार या वॉल बार एंड स्विमिंग पूल। बेसिकली स्विमिंग पूल कैन बी यूज्ड फॉर द, एक एग्जांपल के लिए स्विमिंग पूल हम यूज कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, और यू कैन यूज स्विमिंग पूल फॉर द रिलैक्सेशन। वी कैन यूज स्विमिंग पूल रिलैक्सेशन फॉर द आपका शोल्डर स्टिफ है तो यू कैन यूज सम एक्शंस अंडर द वाटर, तो आपके शोल्डर को रिलैक्स करेगी, आपके लेग्स को रिलैक्स करेगी। बट इन द अदर हैंड स्विमिंग पूल में फुटवर्क करके आप रिहैबिलिटेशन के फुटवर्क के लिए भी जा सकते हैं, जिससे जब आप फुटवर्क के दौरान जब आप नॉर्मल फुटवर्क नहीं कर सकते, पानी के अंदर आपको लेस एफर्ट लगाना पड़ेगा फुट मूवमेंट्स को, मींस आपके ऊपर स्ट्रेस, बॉडी स्ट्रेस फ्लोर पे कम होगा, एफर्ट मसल पावर लगेगी बट नॉट ऑन द बोन। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, रिकवरी या रिहैबिलिटेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये हर एक इम्प्लीमेंट हो, हर एक ट्रेनिंग एड को आप डिफरेंट ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी से डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट
टारगेट को आप स्ट्राइक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कौन को यूज करके मैं एजिलिटी भी डेवलप कर सकता हूँ, कौन को यूज करके मैं इंड्योरेंस भी डेवलप कर सकता हूँ, स्पीड लैडर को यूज करके मैं स्पीड को भी कर सकता हूँ एंड कोऑर्डिनेशन को भी कर सकता हूँ। मिरर इज वेरी गुड फॉर द टेक्निकल डेवलपमेंट, स्किपिंग रोप फॉर द टेम्पो, speed and agility. Rubber expander very good for the core power, explosive strength. Possible for एक्सक्यूज balance. मी को साहब, एक मिनट। को साहब कितना ड्यूरेशन रह गया, कितनी स्लाइड्स हैं और? स्लाइड्स तो आई थिंक 7-8 है, बट वो छोटी ड्यूरेशन की नेक्स्ट स्लाइड सारी। थोड़ा प्लीज रन थ्रू, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी नीड टू हैव अ क्वेश्चन आंसर आल्सो, लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू। यस सर। These strengthening and all those things, just give a general overview, be specific. Later we have got classes of sports psychologist, biomechanist also planned for that. Thank you. Yes, sir. नेक्स्ट इज होल्डिंग ऑफ साइबर वेपन। ये हमने अब तक जो बात किया वो था आपका फुटवर्क का। तो नेक्स्ट इज जब आप फुटवर्क डेवलप करते हैं, सब कुछ आप फुट मूवमेंट सीख जाते हैं, देन वी स्टार्ट टू होल्ड द साइबर वेपन। अब साइबर का जो ग्रिप है इट इज लिटिल डिफरेंट देन द फॉयल एंड एपे। तो एक साइबर के वेपन कैसे होल्ड करना है, जस्ट फ्यू सेकंड का एक वीडियो है, दिस विल कम टू नो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप होल्ड करेंगे। Comes here, and all the fingers come from the grip. That should have a lock, a hole here, yeah. And these two fingers are linked to point and the little finger. These three are the most important fingers. These two are working, doing the same on the little finger. So now hold the weapon please in the hand. तो दिस इज दी वीडियो कि आप कैसे वेपन की फीलिंग को कैसे होल्ड करना है, कितना होल्ड करना है, कितना प्रेशर अप्लाई करना है और दो फिंगर्स को कितना यूज करना है, उसको एक्सप्लेन करती है। तो आपको अपने फिंगर्स को होल्ड करना है, दूसरी एडिंग फिंगर को भी लॉक करना है। जस्ट प्रेस इट, दो फिंगर प्रेस करेंगी, बाकी एडिंग फिंगर जस्ट हेल्प करेंगी, असिस्ट करेंगी। हैंड पोजीशंस जो फेंसिंग साइबर फेंसिंग में है, दिस इज प्राइम। तो ये प्राइम स्टांस है, कैसे करना है। जब प्राइम स्टांस होता है, कौन सा पोर्शन अटैक के लिए अवेलेबल है, जो ये पोर्शन वेपन ने ब्लॉक किया है वो उधर है, बाकी जो आप देख पा रहे हैं लो आउटसाइड लाइन, आउटसाइड हाई लाइन, ये सब जो ओपन है, ये ओपन है। फर्स्ट इज फॉर द डिफेंस, अदर इज फॉर द अदर ओपोनेंट। अगर मैं ओपोनेंट हूं तो मेरे लिए वो टारगेट जोन भी ओपन हो रहा है उस टाइम पे। सेकंड इज सेकंड डे, this is the second position. You can say hand position basically hand movements, you can say it is not a parry, it's a stance जो एज ए पैरी हम इनको यूज करते हैं ओपोनेंट के अटैक को अपने आप को बचाने के लिए। और बेसिकली ये स्टांस है जहां से आप डिफरेंट एक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फ्रॉम प्राइम वी कैन एग्जीक्यूट, फ्रॉम सेकंड वी कैन एग्जीक्यूट। सिमिलरली ये सेकंड में भी यही था, जो सेकंड जब हम पैरी करते हैं या सेकंड स्टांस पे आते हैं, तो जो कवर्ड एरिया है, जो जिसपे हमने वो किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, लाइंस हैं, ये ओपन एरिया है। जब हम सेकंड पोजीशन में, ये एरिया ओपोनेंट के हिसाब से उसके लिए एडवांटेजेस है कि ये ओपन हो रही हैं उसकी। टीयर्स थर्ड पोजीशन। तो सिमिलरली दिस इज टीयर्स पोजीशन, जो साइबर का ऑन गार्ड पोजीशन भी यही है, यहीं से हम कोई भी साइबर का एक्शन जो होता है वो स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वाड। You can say this is the area जब स्क्वाड पोजीशन करते हैं ओपन होता है, बट फर्स्ट वी शुड नो हाउ टू डू द क्वाड। आप हाथ देख सकते हैं कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वीन, दिस इज द फिफ्थ पोजीशन। जब हम क्वीन पैरी करते हैं तो ये एरिया ओपोनेंट के लिए ओपन है, बट यू कैन सी क्वीन पैरी करने के लिए वी नीड टू रेज योर आर्म और अपने हैंड को लिफ्ट करना पड़ता है। नाउ दिस इज ट्रांसफर्स। अब ट्रांसफर्स क्यों? बिकॉज ट्रांसफर इट इज आई थिंक लिटिल एडवांस टेक्निक, आप कह सकते हो थोड़ा सा एडवांस है। हैंड पोजीशन के टाइम पे से के ट्रेनिंग के आप कह सकते टारगेट के बाद इसको करवाना चाहिए, बट
what I felt during my last 1 year, अगर हम ट्रांसफर्स इनिशियली सिखाएंगे तो उसकी जो हैंड मूवमेंट है, हैंड का एग्जीक्यूशन है, हैंड का फ्लो है, वो ज्यादा अच्छा होता है। बिकॉज जितने भी सैबर एक्शंस हैं लाइक फेंट, कट, पैरीज, रिपोस्टेज, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी हैंड के फ्लो के ऊपर। आप हैंड पोजीशन को क्वाड टू 6 कैसे ले रहे हो, टीयर्स से क्वाड में कैसे लेके जाओगे। जब हैंड पोजीशन की मूवमेंट आपने स्टेबलाइज करनी है तो ट्रांसफर इज द बेस्ट वे आपकी हैंड पोजीशन को स्टेबलाइज करने के लिए। Transfer, circle transfer, semicircle transfer. Okay, changing semicircle. First, you need the circle depth transfer. Okay, it's not like this. You can see the flow of the arm. ये flow of arm it will help you in future जब आपको अटैक एग्जीक्यूट करना है, कोई पैरी एग्जीक्यूट करनी, हैंड पोजीशंस को एग्जीक्यूट करना है। Kosa, please move on. We can share the link of these videos with all participants later. Surely. They can see and contact you in person. There's a problem. So now next is the last slide almost. Benefit of practicing hand position and transfers. So first thing is it fix your hand. So exact position कहाँ पर आपको जाना है. Then smooth transition of the movement. आपकी जो transition of the movement है वो अच्छी करेगी. Then supple execution of the movement. Movement का जो execution है वो flow में होगा, muscles tight नहीं होंगे, जो required rhythm है वो उसमें आप कर पाएंगे. And synchronization of movement and coordination means आप for example feint है तो you need to synchronize slow to fast, fast to slow. तो जो synchronization है, अगर आप hand positions को transfers को trading करेंगे तो आपकी synchronization of the movement जो ज्यादा अच्छी होगी. Then the speed of execution. When you want to hit, when you want to make a feint attack or you want to make any blade action, so you need a requisite speed, you need a required speed. वो required speed तब मिलेगी जब आपने उसकी practice कर रखी होगी, आपको hand positions का पता होगा या आपके hand को memorized होगा कि मेरा हाथ यहाँ से इस position पे इतनी speed से जाना चाहिए. तो वो उन सब के लिए हमें hand positions and transfers की ट्रेनिंग करनी चाहिए. अगर हम ट्रेनिंग करेंगे या कोच करवाता है तो उनका जो फेंसर है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है इन सब पैरामीटर्स के ऊपर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फेंसिंग मींस बाउट के दौरान. So this was my presentation. If anyone wants to ask any question. Let me moderate. Now, जैसे मैंने सभी को पूछा था तो I will मैं इनके questions जो इन्होंने chat box में लिखे हैं, the question which has been written in chat box, I will be reading that and I will keep requesting you, Rashid and Sagar and Ashok Bhai Saab and other instructors to answer it. पहला क्वेश्चन जो एक मैं देख रहा हूं ये लिखा है